Hello students, welcome back. I'm here with another topic of recombinant DNA technology. That is, today I will deliver the lecture third, that is part second of process of recombinant DNA technology. Okay, our topic is process of recombinant DNA technology. Earlier we discussed about the process of recombinant DNA technology, that was first isolation of genetic material by using different enzymes. Thereafter we discussed about the separation of that genetic material, gene of interest, as well as the plasmid DNA or the vector DNA. Thereafter third was our amplification of gene of interest using PCR. In PCR, we discussed about the amplification of gene of interest using two things. That is, first was the two set of primers which we used, that were the externally prepared, chemically prepared short oligonucleotide chains, which were applied into the genomic DNA as template DNA. Thereafter, we added DNA polymerase enzyme to extend them. DNA polymerase enzyme to extend those short nucleotides that were primers. Okay. Then what happened when we repeated that replication 30 times, we obtained 1 billion copies of that foreign DNA. That foreign genes can be added into the this plasmid DNA for transformation into a vector. Okay. So we discussed the PCR, that is polymerase chain reaction. Okay. Then third we have insertion of DNA into host cell. Third, insertion of DNA into host cell. So after obtaining the recombinant DNA by joining this foreign DNA as well as the plasmid DNA together, what we did, we have transferred the recombinant DNA into the host. Okay. So what are the techniques of transferring the recombinant DNA into the host? So first of all, let me take the example of host. For example, we have E. coli. E. coli, and we are going to transfer the gene of interest, that is antibiotic resistant gene. What we discussed last time, antibiotic resistant gene. Okay. That was linked with the plasmid DNA. Example PBR322. Okay. लिंक होने के बाद हमारा क्या बना, रिकम्बिनेंट डीएनए बना. क्या बना, रिकम्बिनेंट डीएनए. अगर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने ई कोलाई में ट्रांसफर करना है या प्लांट सेल में ट्रांसफर करना है या कोई भी एनिमल सेल में किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हमने ट्रांसफर करना है तो क्या क्या टेक्निक्स है हमारे पास. सबसे पहले अगर हमें इसको बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करना है, बैक्टीरियल सेल में किसको ट्रांसफर करना है, रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना है, तो हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं. पहला टेक्निक है कि उस बैक्टीरियल सेल को या कोई भी प्लांट या एनिमल सेल को हमने कंपिटेंट बनाना है टू रिसीव दैट फॉरेन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए हमें उस सेल को क्या करना है, कंपिटेंट बनाना है. किसको, होस्ट सेल को हमने कंपिटेंट बनाना है. ठीक है, होस्ट सेल को. सो उस होस्ट सेल को कैसे कंपिटेंट बनाएंगे. सबसे पहले इन केस ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल सेल को हम लेंगे, अगर वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर करना है, एग्जांपल किसी प्लाज्मिड को हमने वहां पर ट्रांसफर करना है, तो उसको रिसीव करने के लिए आप जानते हो जो हमारा डीएनए इज हाइड्रोफिलिक. डीएनए इज हाइड्रोफिलिक. डीएनए इज हाइड्रोफिलिक. So it cannot directly transfer into the cell. ठीक है. What we do, we treat the cell
that is host cell with different types of cations. Example, we have divalent cation या bivalent cation. Divalent cation अगर हम उसमें ऐड करते हैं, एग्जाम्पल वी हैव कैल्शियम 2 पॉजिटिव, हम क्या करते हैं उस होस्ट सेल में या तो बैक्टीरियल सेल में डाइवेलेंट केटाइन जो है ऐड करते हैं। ठीक है, डाइवेलेंट केटाइन ऐड होने की वजह से क्या होता है, उसकी जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाती है। किसकी? उस सेल की पोरोसिटी बढ़ जाती है। ओके, जब उसकी पोरोसिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, उसके बाद वो पोर्स बढ़ेंगे तो वहां से सेल वॉल से, ठीक है, वो जो हमारा प्यूरिफाइड डीएनए है या तो फॉरेन डीएनए है वो इंटर होगा। क्या होगा? वो इंटर होगा टू फोर्स ओपन दोस पोर्स इनटू द सेल एंड टू पुश द फॉरेन डीएनए इनटू द सेल। व्हाट वी डू नेक्स्ट स्टेप इज टू कल्चर, ठीक है, और मिक्स अप दीज कंपिटेंट सेल्स और यू कैन से द होस्ट सेल इनटू द आइस। हम क्या करते हैं, देन वी एड द आइस, उसके बाद हम आइस को ऐड करते हैं। ठीक है, आइस ऐड करने के बाद क्या करेंगे हम उसको, यानी कि हम उसमें कूलेंट इफेक्ट डालते हैं, कूल करते हैं उसको, कूलेंट इफेक्ट के लिए आइस डालते हैं। आइस डालने के बाद उस सेल को हम हीट शॉक देते हैं। क्या करते हैं, दूसरा काम, हम उसको रखते हैं 42 डिग्री सेल्सियस में, 42 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीट शॉक। क्या बोलते हैं? हीट शॉक, हीट शॉक। ठीक है, सो हीट शॉक देने के बाद थर्ड हम क्या करेंगे, इसमें इसको फिर से हम क्या करेंगे, हीट शॉक देने के बाद फिर से हम उसको आइस में रखें, देन अगेन इट्स पुट इनटू द आइस। क्या करेंगे, थर्ड फिर से हम उसमें आइस में ऐड करेंगे, जिसकी वजह से द बैक्टीरियल सेल विल रिसीव द फॉरेन डीएनए और द प्लाज्मिड। ठीक है, एंड that is recombinant DNA. So it will receive the recombinant DNA due to heat shock as well as ice. ठीक है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको फोर्सली ओपन करते हैं उन पोर्स को, और वो डायरेक्टली इंटर होता है कहां पर, रिकम्बिनेंट डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल में इंटर होता है। ठीक है, सो इन केस ऑफ, अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल में हम उसको कैसे ऐड करेंगे, इन केस ऑफ animal cell may we have another method which is known as micro injection. So in micro injection we directly inject the foreign DNA or the recombinant DNA into the nucleus of the animal cell. ठीक है, अगर हमारा होस्ट सेल क्या है, एनिमल सेल है, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक और मेथड यूज करते हैं which is called micro injection. Through micro injection we directly inject the recombinant DNA into the, कहां पर करते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, दैट इज होस्ट सेल। ठीक है, थर्ड, इन केस ऑफ प्लांट सेल, अगर हमारा होस्ट सेल कोई प्लांट सेल होगा, एग्जांपल फॉरेन जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम किसी प्लांट सेल में डालना चाहते हैं ताकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट वहां पर मिल सके, तो इन केस ऑफ प्लांट सेल व्हाट वी डू, प्लांट सेल में हम क्या करते हैं, हमें दो चीजें हैं वहां पर प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, क्या क्या है, पहला जो है उसमें एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं बायोलिस्टिक, या जिसको हम बोलते हैं जीन गन। क्या बोलते हैं, जीन गन। ठीक है, सो जीन गन में क्या करते हैं, हम जो फॉरेन डीएनए है, हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, दैट इज कोटेड विथ, that is applied into the high velocity induced tungsten और गोल्ड। गोल्ड और टंगस्टन में क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी इंड्यूस्ड, ठीक है, जिस जो हाई वेलोसिटी से वहां से मूवमेंट करेंगे, किसके अंदर, सेल के अंदर, उसके बाहर हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, किसको, डीएनए को। कौन सा, फॉरेन डीएनए इज कोटेड इनटू द हाई वेलोसिटी इंड्यूस्ड गोल्ड और टंगस्टन। ठीक है, देन दीस आर बम्बॉर्डेड, क्या करते हैं इसको, दीस आर बम्बॉर्डेड इनटू द सेल।
In case of plant cell, this process is known as biolistic और जीन गन। इसको हम बोलते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसको बायोलिस्टिक और जीन गन बोलते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इसको कहां पर, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, देन वी हैव अनदर प्रोसेस एज वेल। मोस्टली व्हाट वी डू इन केस ऑफ सम बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल या किसी भी सेल में विच आर पैथोजेनिक बैक्टीरिया और यू कैन से पैथोजेनिक वायरस हो सकते हैं, कोई भी पैथोजेंस को हम डिसआर्म करते हैं। क्या करते हैं, द पैथोजेंस आर डिसआर्मिट। उनको डिसआर्म करने के बाद हमारा जो फॉरेन डीएनए है दैट इज एडिट इनटू द पैथोजन विच एक्ट्स एज ए व्हीकल और ट्रांसफॉर्मेशन सोर्स टू ट्रांसफर आवर फॉरेन जीन और प्रोडक्ट्स इनटू द होस्ट। ठीक है, व्हाट वी डू, the pathogenic organism, pathogens or disarm it। disarm it मतलब क्या हुआ, disarm it मतलब हो गया वो जीन्स को रिमूव किया जाता है जिसकी वजह से अंदर वो क्या करते थे, बीमारियां कराते। एग्जाम्पल, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते थे जिसकी वजह से बीमारी होती थी। ठीक है, तो उन जीन्स को रिमूव करते हैं हम लोग, सीधी सी बात है, डिसआर्म किया जाता है जिसकी वजह से वो हमारे अंदर बीमारी इंफेक्शन न कर सके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिसआर्मेशन। डिसआर्म इट इन द फॉरेन जीन और यू कैन से फॉरेन आवर डीएनए इज डायरेक्टली ट्रांसफर इट इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, सो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोसेसेस थे थ्रू विच वी इंसर्ट द recombinant DNA into the host cell. I hope you understood this very well. ठीक है, then thereafter we have last topic, that is third हमारे पास क्या है, obtaining foreign gene product। ठीक है, obtaining foreign gene product। आप देख सकते हो हमारा फिफ्थ टॉपिक है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, लास्ट है ना। हमारा जो अल्टीमेट एम क्या है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हम करते क्यों हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पर्पस ये है कि हमें जो है क्या मिले, वहां पर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिले। इसका मेन पर्पस होता है कि जो हमें बॉडी के अंदर जैसा प्रोडक्ट हम चाहते थे, एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो बुफेलो है वो ज्यादा से ज्यादा हमें मिल्क दे, ज्यादा से ज्यादा हमें दूध दे, तो हम क्या करते हैं, उसका जीन को, एक बुफेले का जीन को निकालते हैं, फिर उसका जीन निकाल के दूसरे बुफेलो के सेल में डालते हैं, उडर सेल्स में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमें मिल्क ईल्ड करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, डिसआर्म करते हैं, जैसे पहले कहा मैंने, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम किसी बैक्टीरिया से निकालते हैं, प्लाज्मिड से। ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, उसके बाद हम फॉरेन जीन को डालते हैं ताकि हमें वहां पर क्या मिले, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो हमारा जो मेन अल्टीमेट डिजायर्ड प्रोडक्ट है दैट इज आवर प्रोटीन्स। क्या है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो हम चाहते हैं बॉडी के अंदर, वो है हमारे प्रोटीन्स हैं। ठीक है, सो प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, आपको पता है, प्रोटीन्स बनते हैं कहां से, डीएनए से। डीएनए में जो इनकोडिंग है, जेनेटिक कोड आपने पढ़ा हुआ है, इनकोडेड शक्ल में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बाद में क्या बनाती है, वो बाद में क्या बनाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स को लिंकेज करती है और हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, वो प्रोटीन बनने के बाद क्या होता है, हमारा मेन पर्पस होता है कि जो प्रोटीन बने वो लार्ज स्केल में बने। किस में बने, देट विल बी फॉर्मड इन लार्ज स्केल। कहां पर, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। तो आप मुझे बताएं, अगर हम एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म को, या प्लांट सेल या एनिमल सेल को कल्चर करते हैं, इंसर्ट करते हैं उसके अंदर क्या, फॉरेन जीन। ठीक है, तो वहां पर तो प्रोटीन बनेगा। क्या आपको इतना सफिशिएंट अमाउंट में उस सेल के अंदर प्रोटीन बनेंगे जितना हम चाहते हैं? नहीं। ठीक है, क्या हम उतना
उसको सप्लाई कर सकते हैं इसमें मार्केट में? नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमने उसको एक दो चीजें होती है हमारे पास। एक होता है स्मॉल स्केल में उन सेल्स को, होस्ट सेल्स को, जहां पर हमने फॉरेन जीन्स को इंसर्ट किया, उनको हमने कल्चर करना है। क्या करना है? उनको स्मॉल स्केल में हम लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल स्केल में हम उनको लैब में कल्चरिंग करते हैं। ठीक है, लैब में कल्चर करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो लैब में कल्चर करने के बाद, लेकिन उतना सफिशिएंट अमाउंट में हमें वहां पर फॉरेन जीन प्रोडक्ट दैट इज प्रोटीन्स कांट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक और अनदर टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। क्या बोलते हैं हम उसको? हम दूसरा एक टेक्निक है विच इज नाउन एज बायोरिएक्टर्स। वो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? वो बायोरिएक्टर्स आपने यहां पर, मैंने एक सिंपल आपको बनाया हुआ है। ठीक है, बायोरिएक्टर्स आपका एनसीईआरटी बुक में भी ये अच्छी तरह दिखाया हुआ है कि क्या होता है। बायोरिएक्टर्स आर द सिंपली वेसल्स। क्या होती है? दीज आर द वेसल्स वेयर वी कल्चर आवर बैक्टीरिया इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, द culture our bacteria in large amount, and as a result of which the foreign gene product, that is क्या है हमारा foreign gene product? Proteins can be obtained in large amount, in large scale. Large scale में हम इसको, इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन्स को बना सकते हैं। ठीक है, स्टोर कर सकते हैं, ये बनाएगा, प्रोसेस करेगा। इसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सुटेबल क्लाइमेटिक, सुटेबल कंडीशंस होने चाहिए। किसके लिए? फॉर द सेल टू ग्रो एंड टू प्रोसेस। ठीक है, उसके लिए सुटेबल कंडीशन होना चाहिए। सुटेबल कंडीशंस क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल, हमारे पास सुटेबल कंडीशन, पीएच हमारा सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, हमारा टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम होना चाहिए। ओके, हमारे पास वहां पर एक सिस्टम होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए। ओके, ताकि हम क्या करें, ताकि ऑक्सीजन डिलीवरी होने से ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में वहां पर अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके बाद सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स ब्रूथ होना चाहिए। वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स जरूरत होते हैं, किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल्स। उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट में क्या होना चाहिए? हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो है मुहैया होना चाहिए। ठीक है, सो देखो हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टायरर्स हैं। इसके लिए क्या है? स्टायरर्स है जिसको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स में क्या होता है हमारा, आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर ये जो बायोरिएक्टर बनाया है, इसके अंदर प्रॉपर मिक्सअप करने के लिए एक वेसल है ये हमारा। ठीक है, उसके अंदर मिक्सअप करने के लिए ये हमारे पास स्टायरर है, ताकि जो भी हमारे पास सबस्टांसेस हमने वहां पर मटेरियल ऐड किए, उनको अच्छी तरह मिक्सअप कर सके। ठीक है, और सरफेस देखो यहां पर क्या है हमारा, इसके ऊपर देखोगे यहां पर मैंने रफ एक डायग्राम बनाया छोटा सा जिगजैग में। तो ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को हमारा बढ़ाता है फॉर द मैक्सिमम डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, ताकि वहां पर ऑक्सीजन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। स्टायरन होने की वजह से सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीजन का वहां पर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स की शक्ल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या है हमारे पास, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है स्मॉल स्केल में हमने आपको कहा लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। ठीक है, तो ताकि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वहां मिल सके। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं जो डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए स्मॉल वॉल्यूम्स में। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कल्चर्स में इतना ज्यादा हमें, जो लेबोरेटरी कल्चर में इतना ज्यादा अमाउंट में वो मिल नहीं सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में ऑब्टेन करने के लिए ऐसे बायोरिएक्टर्स का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जहां पर देखो आप, हम 100 से लेकर 1000 लीटर्स, 100 से लेकर 1000 लीटर्स जो है यहां पर क्या करते हैं, कल्चर्स को प्रोसेस कर सकते हैं। 100 से
1000 लीटर कल्चर को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रोसेस होने की वजह से क्या होगा, तो ये जो बायोरिएक्टर्स हैं वो हमें ऑप्टिमल कंडीशंस जो है प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो क्या मिले। जैसे एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन है या इंजाइम्स है, वो सफिशिएंट क्वांटिटीज में हमें मिल सके। ठीक है, और तीसरी बात हमारे पास यहां पर क्या है, तीसरी बात यह है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो हम यहां पर ऐड करते हैं और उनको हम ऑप्टिमल कंडीशंस में बायोरिएक्टर के अंदर रखते हैं, वो ऑप्टिमल कंडीशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें हम जैसे कि एग्जांपल ऑप्टिमल पीएच होना चाहिए एसिड बेस, ठीक है, या टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबस्ट्रेट में हम क्या ऐड करते हैं, वहां पर डिफरेंट साल्ट्स ऐड करते हैं। ठीक है, विटामिन ऐड करते हैं, है ना, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स जो है जो कि हमारा सेल को ग्रोथ करने के लिए जरूरत पड़ते हैं, उन सबको यहां पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है सिटाइट, ये वाला सिटाइट टैंक बायोरिएक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सिटाइट टैंक रिएक्टर्स, टैंक की शक्ल में होता है ना, जहां पर हमारे पास बीच में सिटायरर होता है। ठीक है, और वो कैसे होते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेपिड होते हैं। कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेपिड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अच्छी तरह हम कंटेंट्स को इस सिटायरर की वजह से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन डिलीवरी को हम यहां पर, ऑक्सीजन जो डिलीवरी सिस्टम है उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी तरह इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे सेल्स हैं वो सफोकेशन की वजह से डेथ ना हो जाए। ठीक है, तो डेट वाज, अब इसका मेन मकसद क्या है हमारा, मैक्सिमम अमाउंट में हमारा फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिले, दैट इज प्रोटीन्स या एंजाइम्स हो। ठीक है, और हम वहां से क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स को वहां से हम सेपरेट करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम वहां से अलग करते हैं, उसके बाद उनको यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द process of recombinant technology. So in this section what we discussed, first of all we discussed about the isolation of DNA. ठीक है, उसके बाद separation of DNA and thereafter cutting of DNA at desired places. Then third we discussed about the PCR polymerase chain reaction. ठीक है, और amplification of gene of interest using PCR. Then fourth, insertion of that foreign DNA into the host by using different techniques. We discussed about the different techniques. Thereafter, obtaining the foreign gene product. That was our last topic, and delivery of that foreign gene product into the market. ठीक है, according to our will. Okay, so that was all about the process of genetic engineering. सो मैं आपको ये कहूंगा, प्लीज कंसल्ट द एनसीईआरटी बुक, ठीक है, विच हैज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन डिटेल्ड वे, एंड यू हैव टू स्टडी इट इन डिटेल्ड मैनर, नॉट इन शॉर्ट मैनर. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया.